हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पुनीत फ्रॉम प्रभ कृपा क्लासेस। हमारे साथ बैठे हैं परमिंदर सर। हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं चैप्टर ग्रीन स्किल्स। इस चैप्टर को हम एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे आज कौन कौन से टॉपिक्स चलेंगे। नंबर 1, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? व्हाट आर द थ्री कोर एलिमेंट्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? Second, how can we achieve sustainable development goals, or what does sustainable development includes? How we and our future generations can enjoy the good environment. Third, why do you think the United Nations has made these 17 sustainable development goals? Fourth, write a note on sustainable development initiatives. Fifth, describe one way in which we can work to conserve and protect the environment. Sixth, list some ways in which we can use resources sensibly or contribute towards sustainable development. Seventh, explain the importance of education towards sustainable development. Eighth, explain the importance of our role in sustainable development. Ninth, what are the challenges or problems in the way of sustainable development? तो स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। The environment around us affects all aspects of our life, and all our day to day activities also affect the environment. In the name of economic development, we are causing environmental damage in various forms. We are destroying trees for our use. We are polluting water resources with garbage. We are causing air pollution by burning wood and petrol. 1 million plant and animal species are at risk of extinction. Global hunger is on the rise. Young people are more likely to be unemployed than adults. Natural environment is deteriorating at an alarming rate. Extreme poverty is 3 times higher in rural areas than in urban areas. Land degradation continues unchecked. We are only thinking about our immediate development and not the long term development. अब हमारे पास क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। जो हमारे इन्वायरमेंट है वो हमारे हर एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को इफ़ेक्ट करता है, और हम जो भी एक्टिविटीज़ हर रोज़ करते हैं उससे हमारा इन्वायरमेंट भी इफ़ेक्ट होता है। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर इन्वायरमेंट को कई रूप से डैमेज कर रहे हैं। हम तेज़ी से ट्रीज़ को काट रहे हैं। हम वाटर रिसोर्सेज को गार्बेज के साथ पोल्यूट कर रहे हैं। हम वुड और पेट्रोल को यूज़ करके एयर को भी पोल्यूट कर रहे हैं। आज ये समय आ गया है कि 10 लाख के करीब प्लांट और एनिमल स्पीसीज़ जो हैं वो एक्सटिंक्शन पर पहुंच गए हैं। दुनिया भर में हंगर जो है, भूख जो है वो बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है। यंग लोग जो हैं उनको कोई भी नौकरी नहीं मिल रही। नेचुरल एनवायरनमेंट जो है वो भी बड़ी तेज़ी से डिटीरियोरेट हो रहा है। शहरों की कंपैरिजन में रूरल एरियाज में पॉवर्टी बहुत बढ़ रही है। सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम हो रहे हैं। इस तरह हम जो है आजकल इमीडिएट डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हैं सिर्फ। हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। We are simply using the air, water, and soil available without leaving anything for the future generations to come. We need sustainable development. But what does this mean? Sustainable development for multinational companies means simply sustained growth or sustained profits. Every agency now has its own definition of sustainable development. Sustainable development can be defined as development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. While talking about sustainable development, the main priority should be given to the essential needs of the world's poor. हम सिर्फ आजकल अपने तौर पर ही सोच रहे हैं, अपने लिए ही सोच रहे हैं। हम आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ भी नहीं सोच रहे। ये जो वर्ड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसका क्या मीनिंग है? जो मल्टी लेवल ऑर्गेनाइजेशंस, जो सपोज करो आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है,
जहाँ दुनिया भर की बड़ी बड़ी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो हर एक की सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अपनी ही डेफिनेशन है। अगर हम सिर्फ मल्टीनेशनल एमएनसीज की बात करें, तो उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग है सस्टेन्ड ग्रोथ होना, सस्टेन्ड प्रॉफिट्स होना। सपोज करो उनका रेवेन्यू आज यहाँ है, वो कहते हैं कि जो हमारा प्रॉफिट जो है हर साल बढ़ते रहना चाहिए, जो हमारा रेवेन्यू लगातार ऊपर की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। ये उनके लिए सस्टेन्ड डेवलपमेंट है। हर एक एजेंसी की सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अपनी ही डेफिनेशन है। असल में सस्टेनेबल डेफिनेशन की डेफिनेशन क्या है कि ऐसी डेवलपमेंट जिससे ना केवल हम आज अपनी जरूरतों को, नीड्स को पूरा कर सकें, बल्कि आने वाली जनरेशन्स भी अपनी जरूरतों को वो पूरी कर सकें। बल्कि हमारी जो डेवलपमेंट आज हो रही है वो इस तरह होनी चाहिए कि आने वाली जनरेशन्स को भी अपनी नीड्स को पूरा करने में कोई भी परेशानी ना हो। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि दुनिया में बहुत लोग, बहुत सी संख्या जो है गरीब लोगों की है, और उनकी गरीबी की तरफ, उनकी जरूरतों की तरफ हमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। Further, we must remember that there are limitations on the ability of the environment to meet present and future needs. Three core elements of sustainable development are economic growth, social inclusion, and environmental protection. Importance of sustainable development. In the name of economic development, we are causing environmental damage in various forms. We are using resources of the world so quickly that our future generations would have to face serious environmental problems. The area of arable land currently available is diminishing due to deforestation. Unless we find more sustainable alternatives to wood, the future does not look that bright. हमें ये बात रिमेंबर रखनी चाहिए, याद रखनी चाहिए कि एनवायरनमेंट जो भी रिसोर्सेज हमें दे रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो भी हैं, उनकी एक लिमिटेशन है कि वो कहाँ तक हमारी ज़रूरतों को और आने वाली नीड्स, फ्यूचर नीड्स को पूरा कर सकेंगे। सपोज़ करो अगर हम एग्ज़ाम्पल लें कि वुड की, कि जो ट्रीज़ आज दुनिया में पाए जा रहे हैं, अगर हम उनको बड़ी तेज़ी से काटते जाएँगे, डिफ़ॉरेस्टेशन करते जाएँगे, तो आने वाले फ्यूचर जनरेशंस के लिए कोई ज़्यादा ट्रीज़ नहीं बचेंगे और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम भी हो जाएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के 3 मेन एलिमेंट्स कोर एलिमेंट्स हैं, वो क्या हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल इंक्लूजन एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अब बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की महत्ता, इंपॉर्टेंस क्या है। हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल डैमेज कर रहे हैं, और वो एनवायरमेंटल डैमेज हम कई रूप से कर रहे हैं। हम इतनी तेज़ी से जो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं कि आने वाली जनरेशन्स को बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। जो एरेबल लैंड है, जो मतलब कि जिस पर हम खेती कर सकें, उस लैंड जो आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है खेती योग्य लैंड, वो लगातार कम होती जा रही है, क्योंकि हम लगातार डिफोरेस्टेशन करके वहाँ पर इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं या अपने घर बना रहे हैं हाउसेज के लिए, या रोड्स को बना रहे हैं, वो फॉरेस्ट को काट कर या एग्रीकल्चर लैंड को ख़त्म करके। अगर हम आज की डेट में वुड के लिए, मतलब कि लकड़ी के लिए कोई सस्टेनेबल अल्टरनेटिव नहीं ढूंढते, तो आने वाले फ्यूचर हमारा कोई भी ज़्यादा ब्राइट नहीं है। We may have to face potential food shortages in the future in the face of our growing population. Increasing population is leading to increased utilization of natural resources. Sustainable development is an issue which should be treated very seriously as it affects everyone. If the world continues to function as it is, many predict that our future is not good. Since most of the natural resources are scarce, so careful utilization of resource is necessary. Sustainable development in the field of agriculture means using environment friendly methods of farming. We should prevent the use of chemicals so that there are no adverse effects to soil, water, and biodiversity. Society must change its development strategy to a new form where development will not destroy the environment. All of us need to reconsider our own lifestyle. हमारे वर्ल्ड की पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, इसलिए आने वाले समय में फूड शॉर्टेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अगर पॉपुलेशन हमारी बढ़ रही है, इससे
नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन भी बढ़ रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा इशू है, एक ऐसा क्वेश्चन है जहां जिसको हमें सीरियसली सोचने की हर एक को जरूरत है। अगर हम इसी तरह फंक्शन करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा जो फ्यूचर है वो अच्छा नहीं होगा। वो कैसे अच्छा नहीं होगा? अगर हम पानी को मिस यूज करते रहेंगे या वाटर रिसोर्सेज के जो भी साधन है, रिवर्स हैं, ओशंस हैं, उनमें गार्बेज फेंकते रहेंगे या प्लास्टिक का ज्यादा से ज्यादा यूज करते रहेंगे, डिफोरेस्टेशन करते रहेंगे, तो इससे आने वाली जनरेशन को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो बहुत ही स्केयर हैं, कम मात्रा में है, उनकी लिमिटेड क्वांटिटी है। इसलिए हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज या जो भी रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइजेशन ध्यान से करनी चाहिए। अगर एग्रीकल्चर की बात करें कि वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो सकता है, हमें इन्वायरमेंट फ्रेंडली मेथड्स जो है फार्मिंग के अपनाने चाहिए। हमें केमिकल्स को खेतों में ज़्यादा यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फर्टिलाइजर्स हैं केमिकल के बने होते हैं ज़्यादातर, वो सॉइल, वाटर और बायोडाइवर्सिटी को एडवर्सली अफेक्ट कर रहे हैं। हमें अपनी डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी को इस तरह की बनाना चाहिए कि हमारी जो डेवलपमेंट है वो हमारे इन्वायरमेंट को एडवर्सली अफेक्ट ना करे। ऑल ऑफ अस नीड टू रिकंसिडर अवर ओन लाइफस्टाइल। हम सबको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। अगर हम सपोज करो कहीं कार में जा रहे हैं तो हमें ये नहीं कि कुछ खाया पिया और बाहर फेंक दें, बल्कि हर एक को चाहिए कि हम प्रॉपरली एज ए प्रॉपर जो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बिहेव करें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। Problems or challenges related to sustainable development. The major problems related to sustainable development are: A. Food. The amount of agricultural land is becoming less day by day as we are using up more and more land for other purposes like building homes, factories, roads, etc. Soil nutrients are also decreasing and loads of chemicals are spoiling the soil due to use of chemical fertilizers. B. Water. We use fresh water from rivers and ponds for drinking and cleaning, but we are polluting these water sources by dumping garbage into them. This way, after several years, we will have no clean water for our use. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते में हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। पहला है फूड। जो एग्रीकल्चर लैंड आज हमारे पास अवेलेबल है वो दिन प्रतिदिन डे बाय डे कम होती जा रही है, क्योंकि हम जो लैंड है वो अदर पर्पसेस, कोई बिल्डिंग बनाने के लिए, होम्स बनाने के लिए, फैक्ट्रीज के लिए या रोड्स बनाने के लिए यूज कर रहे हैं। और सॉइल की न्यूट्रिएंट, सॉइल की फर्टिलिटी भी जो है वो कम होती जा रही है, क्योंकि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हैं। इससे सॉइल जो है वो स्पॉइल हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है वाटर। हम पॉन्ड से, रिवर से ड्रिंकिंग वाटर और क्लीन वाटर ऑब्टेन करते हैं, पर इन सोर्सेज ऑफ वाटर को जैसे रिवर और पॉन्ड्स को हम गार्बेज के साथ डंप कर रहे हैं, वहां पर कूड़ा फेंक रहे हैं एक तरह से। ठीक है, अगर इसी तरह कुछ साल और बीत गए तो हमें पीने के लिए भी शायद साफ पानी नहीं मिलेगा। C. Fuel. We are cutting more and more trees and using the wood of trees as fuels and for construction of homes and furniture. The cutting of trees is affecting the climate of the place. Extreme weather conditions such as floods, extreme cold or heat are seen in many places which affect the people living there. D. Lack of financial resources to carry out and plan sustainable development. E. War-torn countries. Sustainable development is often not possible in war-torn countries as there are other priorities on hand. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते में एक और प्रॉब्लम है फ्यूल। हम ज़्यादा से ज़्यादा डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं और जो ट्रीज हम काटते हैं उसकी जो वुड है हम घर बनाने में, फर्नीचर बनाने में या फ्यूल्स के तौर पर यूज़ कर रहे हैं। और जब हम ट्रीज को काट रहे हैं इससे हमारा क्लाइमेट भी अफेक्ट हो रहा है। हम कई जगह देखते हैं कि फ्लड के कारण और एक्सट्रीम कोल्ड या हीट के कारण वहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, जिससे वहाँ पर रह रहे लोगों को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनकी कमी के कारण भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते में बहुत सी
प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वार टॉर्न कंट्रीज। कई देशों में आपस में वार लगी हुई है, वो लड़ाई कर रहे हैं, आपस में वार पर है। जैसे ईरान इराक हो गया, अफगानिस्तान में सिविल वार हो गई, इराक में भी सिविल वार है, और इसी तरह और भी कई कंट्रीज वर्ल्ड में है। वहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो को होने में बहुत ही मुश्किल आ रही है। F. Natural occurrences such as earthquakes and tsunamis can create a threat to sustainable development as they can shift the flow of water and destroy certain elements of infrastructure. G. Corruption at various levels of the government also creates a big challenge in the way of achieving sustainable development. Sustainable Development Goals. United Nations has formed 17 Sustainable Development Goals in September 2015. It has set targets that the country should work to achieve the same by 2030. The 70 SDGs have been made so that countries can work towards finding a solution to the growing problems in the world. These goals are interconnected and based on the principle of leaving no one behind. नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल अक्रेंसेस। नेचुरल अक्रेंसेस जैसे कि अर्थक्वेक या सुनामीज, वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई अर्थक्वेक या सुनामी आ जाती है तो इससे क्या होता है कि रिवर्स या कोई और पॉन्ड्स, उनके जो फ्लो ऑफ वाटर है वो उनका रास्ता ही बदल जाता है, रिवर्स का रास्ता ही बदल जाता है। और इससे क्या होता है, जो पुल बने होते हैं या कोई भी और इंफ्रास्ट्रक्चर बना होता है, रेलवे लाइंस होती हैं, ये सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है करप्शन। गवर्नमेंट के कई लेवल्स पर कई देशों में बहुत ज़्यादा करप्शन है, और इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते में बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं। यूनाइटेड नेशंस ने सितंबर 2015 में 17 डेवलपमेंट गोल्स फॉर्म किए थे। ये 17 डेवलपमेंट गोल्स के थ्रू यूनाइटेड नेशंस ने एक टारगेट्स अपनाए हैं जो कि हर कंट्री को अचीव 2030 तक अचीव करने हैं। ये जो 17 डेवलपमेंट एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, वे इस तरह से बनाए गए हैं कि ताकि जो दुनिया भर में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं उनका कुछ हल सोल्यूशन निकाला जा सके। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं ये सारे इंटरकनेक्टेड हैं, ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और ये इस प्रिंसिपल पर बेस्ड हैं, लीविंग नो वन बिहाइंड, कि किसी को भी पीछे नहीं छोड़ना। यानी कि मेन मकसद है कि जो गरीब हैं उनको हमें पीछे नहीं छोड़ना। Sustainable Development Goals, also known as the Global Goals, are a global initiative which aim to end poverty, protect the environment, reduce economic inequality, and ensure peace and justice for all. SDGs are designed to bring the world to several life changing zeros, including zero poverty, hunger, AIDS, and discrimination against women and girls. Countries are now making policies and regulations to provide a secure, affordable, and sustainable economy. If we want to contribute towards environment, we should spread awareness about environmental issues and should be willing to learn about sustainable development. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ग्लोबल गोल्स भी कहा जाता है। इनका मेन एम क्या है कि दुनिया भर में पावर्टी को ख़त्म करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना, और हर तरफ पीस एंड जस्टिस हो। ये जो एसडीजीज हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, ये इसलिए बनाए गए हैं ताकि सारे वर्ल्ड में कुछ सेवरल लाइफ चेंजिंग जीरोस ला सके। जैसे जीरो पॉवर्टी हो, जीरो हंगर, एड्स, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स ना हो। जो कंट्रीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब वो ऐसी पॉलिसीज और ऐसे रूल्स बना रहे हैं जिससे आने वाले समय में सभी जो इकोनॉमी है उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके। अगर हम चाहते हैं कि हम इन्वायरमेंट के लिए कुछ करें तो हमें इन्वायरमेंटल इश्यूज के बारे में अवेयरनेस को स्प्रेड करना होगा, और इसके अलावा हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी और सब्जेक्ट पर थारो स्टडी करनी चाहिए। Sustainable Development Initiatives.
when plastics were banned by the Municipal Corporation of Mangalore, an innovator and entrepreneur, Mr. Awaz had found an eco friendly alternative. He made a 100% biodegradable bag which can dissolve in food water and decompose in natural environment. This is now being used in many countries and is going to help the environment. Another example of innovative idea is Mr. Narayana Pisapati, who created edible cutlery in order to eradicate plastic cutlery, spoons, forks, etc. These spoons can be eaten, and even if they are not eaten, they will easily decompose in the soil, enriching it. यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स के लिए इंडिया में जो भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उनके बारे में 2-3 एग्जांपल्स दी गई हैं। पहली एग्जांपल है कि मंगलौर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने जब प्लास्टिक के यूज़ को बैन किया तो वहाँ पर एक इनोवेटर एंटरप्रेन्योर मिस्टर अवस्थ हेगड़े ने एक अल्टरनेटिव इको फ्रेंडली अल्टरनेटिव निकाला। उन्होंने 100% बायोडिग्रेडेबल बैग की इन्वेंशन की इनोवेट किया जो कि हॉट वाटर में डिजोल्व हो जाता है और नेचुरल इन्वायरमेंट में अपने आप ही डीकम्पोज खत्म हो जाता है। और उनका बनाया हुआ ये जो बायोडिग्रेडेबल बैग है वो अब कई कंट्रीज में यूज किया जा रहा है और इससे ये इको फ्रेंडली होने के कारण इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता उनका बनाया हुआ बैग। अनदर एग्जांपल है नारायणा पिसापति की। ये हैदराबाद के रिसर्चर हैं और उन्होंने उनके मन में एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। वो चाहते थे कि प्लास्टिक का यूज कम से कम हो, इसलिए उन्होंने एक मन में सोचा हुआ था कि वो किसी ना किसी ऐसी चीज की इन्वेंशन करें कि जिससे प्लास्टिक का यूज कम से कम हो। उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के लिए अपने घर तक को बेच दिया और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को फंड करने के लिए फिर उन्होंने क्या क्रिएट किया, उन्होंने क्रिएट किया एडिबल कटलरी। एडिबल कटलरी बनाई उन्होंने, इन्वेंट की, ताकि जो प्लास्टिक की कटलरी यानी कि प्लास्टिक के स्पून्स या फोक्स हैं उनको खत्म किया जा सके। ये जो एडिबल स्पून्स हैं, ये जो स्पून्स हैं उन्होंने इन्वेंट किए थे, उनको खाया भी जा सकता है, ईटन, दे कैन बी ईटन। एंड अगर हम उनको ईट नहीं करते तो तब भी ये ऑटोमेटिकली डीकम्पोज हो जाते हैं। उनके बनाया हुआ जो भी कटलरी है वो ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट में खत्म हो जाती है। One initiative was taken by Ministry of Railways in Varanasi and Raebareli where they introduced clay pots, kulharts to replace plastic and paper cups and to bring back taste of tradition. Three major advantages gained by using kulharts are: number 1, reduction in cutting of tree for making paper cups; number 2, job creation for potters which contributes to economy; third, reduction in plastic waste. In India, Niti Aayog has been assigned the role of overseeing the implementation of SDGs in the country. To spread awareness about the goals and to take steps to achieve SDGs, Niti Aayog has organized several national and regional level consultations. As per Sustainable Development Index 2019, India ranked 115 out of 162 countries. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते में एक और इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने वाराणसी और रायबरेली में किया। उन्होंने प्लास्टिक और पेपर कप्स को रिप्लेस करने के लिए क्ले पोट्स, मिट्टी के पोट्स जिनको कुल्हड़्स कहा जाता है, वो इंट्रोड्यूस किए ताकि इससे जो है हमारे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान ना हो और इससे ट्रीज की कटिंग भी रुक जाएगी और जो पोटर्स, जो गरीब आदमी जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उनके लिए जॉब क्रिएट्स हो और प्लास्टिक का वेस्ट भी कम क्रिएट हो। आज की डेट में लगभग ऑल ओवर दी इंडिया लगभग 400 स्टेशन पर ये कुल्हड़्स यूज किए जा रहे हैं और सेंटर के जो रेलवे के मिनिस्टर हैं उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि आने वाले समय में ऑल ओवर दी इंडिया सभी रेलवे स्टेशन पर चाय के लिए कुल्हड़्स को ही, ये क्ले पोट्स जो है मिट्टी के बर्तन को ही यूज किया जाएगा। इंडिया में ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की इम्प्लीमेंटेशन को जो ओवरसी करना है उसका जो जिम्मा है वो नीति आयोग के पास है। नीति आयोग वो रीजनल और नेशनल लेवल पर कई कंसल्टेशन समय समय पर करता रहता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स
2019 के अनुसार इंडिया का रैंक 162 कंट्रीज में से 115 है। Next, sustainable processes. Some practices such as organic farming, vermicomposting, and rainwater harvesting are being used to help preserve the environment. Organic farming is where farmers do not use chemical pesticides and fertilizers to increase their production. They use organic and natural fertilizers such as cow dung to help in growing crops. This helps in the better quality chemical free crops while at the same time maintaining the soil quality for future use. This is a true example of sustainable development where we are not only using the earth resources, but are also preserving it for our future generations. यहाँ सस्टेनेबल प्रोसेस की बात की गई है। कुछ प्रैक्टिसेस जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू हम इन्वायरमेंट को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किसे कहते हैं। जब हम फार्मिंग के लिए केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स को यूज ना करके ऑर्गेनिक और नेचुरल फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं तो इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहते हैं। इससे जो क्रॉप्स की क्वालिटी है वो अच्छी होती है और सॉइल की क्वालिटी भी फ्यूचर यूज के लिए बनी रहती है। ये जो एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक एग्जांपल है। इससे अर्थ के जो रिसोर्सेज हैं वो भी हम यूज कर रहे हैं और साथ साथ हम अर्थ के रिसोर्सेज को फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी सेव कर रहे हैं। Our role in sustainable development. Increasing population and development has led to the increase in consumption of the natural resources. The more the population, the more food, energy, and water we need. When we grow more crops, the soil's nutrients are consumed and slowly the soil becomes unusable. Similarly, we continue to use fossil fuels such as coal, oil, and natural gas. Very soon we will run out of these natural resources. We use so many resources from nature, but what do we give back to nature? Factories give out smoke that pollutes the air. Garbage collected from homes is dumped into landfills. Untreated garbage can lead to disease and unhealthy environment. Sewage from the cities is dumped into the seas and lakes, making it unsafe for marine life. हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या रोल है। आज पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इससे नेचुरल रिसोर्सेज की कंजम्पशन भी बढ़ रही है। ज़्यादा पॉपुलेशन के कारण इस जो बड़ी हुई पॉपुलेशन इसको भी फूड भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए और वाटर भी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स भी प्रोड्यूस करनी पड़ेगी। इससे क्या हो रहा है कि सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी तेजी से कंज्यूम हो रहे हैं और सॉइल है धीरे धीरे वो अनयूजेबल हो रही है। हम लगातार फॉसिल फ्यूल्स को, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, कोल हो गया, इन सब को यूज़ करते जा रहे हैं और वो दिन दूर नहीं कि जब ये नेचुरल रिसोर्सेज भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। हम इन सभी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ तो कर रहे हैं पर हम नेचर को वापस क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। फैक्ट्रीज जो हैं वो धुआं छोड़ रही हैं और एयर को पल्यूट कर रही हैं। घरों से जो इकट्ठा होता है गार्बेज वो लैंडफिल्स में डंप कर दिया जाता है और जो अनट्रीटेड गार्बेज है उसके कारण कई प्रकार की डिसीजेस फैल रही हैं और इन्वायरमेंट भी अनहेल्दी हो रहा है। जो सिटीज से सीवेज निकल रहा है वो रिवर से, सीज में, लेक्स में हम डंप कर रहे हैं। इससे जो मरीन लाइफ, जो समुद्र में पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं उनकी जिंदगी को, लाइफ को खतरा पैदा हो गया है। This shows that though we are using the natural resources, we are doing nothing to return or give back to nature. Natural resources are limited and with time they will get over, and if we do not do anything about it, our future generations will not be able to survive. Our role towards sustainable development. United Nations has formed 17 sustainable development goals which aim to end poverty, protect the environment, reduce economic inequality, and ensure peace and justice for all. SDGs are designed to bring the world to several life changing zeros, including zero poverty, hunger, AIDS, and discrimination against women and girls,
countries are now making policies and regulations to provide a secure, affordable, and sustainable economy. इस तरह शो हो गया कि हम जो नेचुरल रिसोर्सेज यूज तो कर रहे हैं, पर हम नेचर को कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, और वो समय दूर नहीं कि अगर हम ने इनको जुडिशियसली यूज ना किया या इनको बचाने के लिए कुछ प्रयत्न ना किए, तो आने वाली जनरेशन्स को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। अगला पॉइंट है कि हमारा रोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है। यूनाइटेड नेशंस ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं, जिनका एम पॉवर्टी को ख़त्म करना, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना और पीस एंड जस्टिस फॉर ऑल है। ये जो एसडीजीज हैं, इनको इस तरह बनाया गया है कि ताकि कई लाइफ चेंजिंग जीरोज आए, जैसे जीरो पॉवर्टी, जीरो हंगर, नो एड्स और डिस्क्रिमिनेशन जो है वुमेन एंड गर्ल्स के अगेंस्ट ना हो। कंट्रीज जो अब हैं वो अपनी पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे बना रहे हैं कि उनकी जो इकोनॉमी है वो सस्टेनेबली डेवलप करे। Sustainable development can actually happen only when each one of us works towards it. We have to become responsible citizens who can protect the environment through our own efforts. Here are some basic ways in which people can help towards sustainable development goals or the ways by which we and our future generation can enjoy the good environment. Number 1, quality education. Education is the most important factor for sustainable development. Education helps us become aware of our role as a responsible citizen. Sustainable development is a societal rather than an environmental challenge. सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम तभी प्राप्त कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं, जब हम में से हर कोई सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ काम करे। हमें रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की तरह बिहेव करना होगा। इससे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल कर सकते हैं और अपने इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ रास्ते बता रहे हैं जिससे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हम हासिल कर सकते हैं और जो आने वाली जनरेशन्स हैं वो भी गुड इन्वायरमेंट को इंजॉय कर सकेंगी। सबसे पहला है क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। एजुकेशन से हमें ये पता लगता है कि हम एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, एजुकेशन से हमें ये पता चलता है कि हमें एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बिहेव करना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट केवल एक सोसाइटल चेंज नहीं है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक सोसाइटल चेंज है, ये एक एनवायरमेंटल चेंज नहीं है। Considerable improvements are required in education and healthcare, resulting among others in higher income and better environmental decisions. Education brings changes in our knowledge, skills, values, and attitudes and shows us the ways how to live together and with nature in peace and harmony. Number 2, clean water and sanitation. We must make efforts to make India free of open defecation by building toilets and creating awareness towards sanitation. Industrial pollution is polluting our water resources, which is near future will cause shortage of clean drinking and usable water. We must promote awareness to keep water sources clean. एजुकेशन और हेल्थ केयर के एरियाज में बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, जिससे कि सभी लोगों की इनकम बढ़ेगी और इन्वायरमेंट भी ठीक होगा। एजुकेशन से हमारी नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज़, एटीट्यूड्स में चेंज आती है, और जो एजुकेशन है हमें ये सिखाती है कि हमें कैसे मिलजुल के रहना चाहिए और नेचर के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, अगर हम इंडिया की बात करें तो हेल्थ केयर के फील्ड में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम लॉन्च की हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। हमें इंडिया को ओपन डिफेकेशन से मुक्त करने के लिए घर घर में टॉयलेट्स बनाने होंगे और हमें सैनिटेशन, साफ सफाई के प्रति लोगों को अवेयर करना होगा। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो है वो वाटर रिसोर्सेज को पोल्यूट कर रहा है और इससे आने वाले समय में पीने वाले पानी और साफ पानी की कमी हो जाएगी। हमें
अपने जो दुनिया भर में पाए जाने वाटर रिसोर्सेज हैं उनके बारे को क्लीन रखने के लिए अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। Next, affordable and clean energy using solar power does not cause pollution as it does not require burning of non renewable fuels such as coal. We are making efforts to increase the solar power generation so that our electricity needs are met and at the same time we do not pollute the environment or use up natural resources. Use of biogas is also as eco-friendly alternative to natural gas. We should reduce the use of fossil fuels. Fourth, creating sustainable cities. Number 1, save energy by switching off lights and fans when not in use. Number 2, use natural light as much as possible. Third, use energy efficient lights, LED bulbs and appliances. हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। हमें सोलर पावर को यूज़ करना चाहिए। इससे कोई भी पोल्यूशन भी नहीं होता और हमें कोल वगैरह जो नॉन रिन्यूएबल फ्यूल्स हैं उनको बर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। सोलर पावर जनरेशन से है हम ना केवल अपनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत जो नीड्स हैं उसको पूरा कर सकते हैं, इससे हम इन्वायरमेंट को भी पोल्यूट होने से बचा सकते हैं और इससे जो नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं वो भी एक्सटिंक्ट होने से बच जाते हैं। हमें फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम से कम करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमें सस्टेनेबल सिटीज़ को क्रिएट करना चाहिए, इससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी। हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें जो लाइट्स जब हमें ज़रूरत नहीं है उस समय हम लाइट्स और फैंस को बंद कर दें और जहाँ तक पॉसिबल हो सके हमें नेचुरल लाइट को यूज़ करना चाहिए। हमें जो पुराने समय में पाए जाने वाले बल्ब से उनकी कंपैरिजन में हमें जो एलईडी बल्ब जो लेटेस्ट हैं उनको यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। Fifth, reduce inequalities. To reduce inequalities, we can number 1, be helpful to one another. Number 2, be friendly with everyone. Third, include everyone while working or playing. Fourth, help others by including everyone, whether they are small or big, girl or boy, belong to any class or caste. Sixth, protect life on land. Cutting of trees is leading to soil erosion and making land dry and unusable for cultivation. Planting more trees to replace the ones that we have cut is an important step towards sustainable development. Green grassy patches and trees to be grown between concrete buildings. अगर हम सोशल डेवलपमेंट को अटेन करना चाहते हैं तो हमें इन इनक्वालिटीज़ को कम करना होगा। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे से फ्रेंडली होना चाहिए। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं या खेल रहे हैं तो हमें दूसरों को भी साथ में शामिल करना चाहिए और हमें कोई भी हो, चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, गर्ल हो या बॉय हो, किसी भी कास्ट या क्लास का हो, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड। हमें जो ट्रीज़ है उनको उनको काटने कम काटना चाहिए क्योंकि जो हम ट्रीज़ काट रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, इससे सॉइल इरोजन हो रही है और लैंड जो है वो कल्टीवेशन के लिए अनयूजेबल हो रही है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाने चाहिए, इससे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल कर सकते हैं। हम जो कंक्रीट की बनी बिल्डिंग्स हैं उनके बीच में जो भी स्पेस है वहाँ पर हमें ग्रीन ग्रासी पैचेस लगाने चाहिए या ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए। Seventh, responsible consumers and producers. We can become responsible about our own environment by number 1, reuse, Reusing reusing waste paper, glass, plastic, water, etc. Number 2, taking cloth bags to market, carrying fruits and vegetables. 3, donate things we do not use such as clothes, books, furniture, food, etc. Fourth, buy and eat seasonal fruits and vegetables from local growers. Fifth, repair leaking taps and pipes to avoid wasting water. Sixth, sort and treat garbage before disposing. Seventh, use of technologies which are environment friendly and based on efficient use of resources. अगर हम सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अटेन करना चाहते हैं तो हमें
एज रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स बिहेव करना चाहिए। हमें जो वेस्ट पेपर या वेस्ट ग्लास, वेस्ट प्लास्टिक और वेस्ट वाटर है उसको रीयूज़ करना चाहिए। हमें जब मार्केट में जा रहे हैं तो वहाँ पर जाकर प्लास्टिक बैग्स की डिमांड नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें घर से ही क्लॉथ बैग्स को लेकर जाना चाहिए और मार्केट से परचेजिंग करना चाहिए। हमारे पास जो भी क्लोथ्स, बुक्स, फर्नीचर और फूड जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे लिए वेस्ट है, जहाँ हम और नया ले आए हैं, तो हमें उस पुराने क्लोथ्स, बुक्स वगैरह को गरीबों को डोनेट कर देना चाहिए। हमें खाने-पीने के लिए लोकल ग्रोवर से सीज़नल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही परचेज़ करने चाहिए। अगर पानी वेस्ट हो रहा है, कोई पाइप लीक कर रही है या टैप लीक कर रही है, तो हमें उसको रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, तो आने वाले समय में पीने वाले पानी की बहुत ज़्यादा समस्या होने जा रही है। हमें जो गार्बेज है, उसको प्रॉपरली ट्रीट करके ही डिस्पोज़ ऑफ करना चाहिए। हमें ऐसी टेक्नोलॉज़ीज़ को इन्वेंट करना चाहिए और यूज़ करना चाहिए, जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो और जिससे कि रिसोर्सेज़ का एफिशिएंट यूज़ हो। 8. Protect life below water. Tons of plastic is found in the seas, which is killing marine life. Protecting marine life, saving our oceans from pollution is necessary to preserve the marine life. We should use more environment friendly material or biodegradable material. 9. Encourage public and private investments that align with the SDGs. 10. All stakeholders must work together to conserve, restore, and rationally use natural resources. 11. Drastically changing development policies, incentives, and actions. Government should impose taxes or fines on release of the waste directly into the water resources. नेक्स्ट पॉइंट है कि हमें पानी के नीचे जो रह रहे हैं जीव जंतु उनको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए, यानी कि हमें मरीन लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। आजकल क्या हो रहा है, हम प्लास्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं, वो अल्टीमेटली रिवर्स में और सीज समुंदर में जा रहे हैं, जिससे कि जो मरीन लाइफ है उनकी लाइफ को बहुत ही खतरा पैदा हो गया है। हमें उनको बचाने के लिए प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करना चाहिए। हमें वही मटेरियल यूज़ करना चाहिए जो बायोडिग्रेडेबल हो, यानी कि जो समय के साथ खत्म हो जाए मटेरियल। ऐसे बैग्स को प्लास्टिक की अपेक्षा में यूज़ करना चाहिए। और हमें जो पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इनकरेज करना चाहिए, जो कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में हेल्प कर सकें। उन क्षेत्रों में हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और हमें ऑल स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर काम करना होगा, ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकें, रिस्टोर कर सकें और उनका रैशनल यूज़ कर सकें। सभी स्टेट्स लेवल पर गवर्नमेंट्स या नेशनल लेवल पर गवर्नमेंट्स को अपनी डेवलपमेंट पॉलिसीज, इंसेंटिव्स और एक्शंस को ड्रास्टिकली चेंज करना होगा। अगर कोई इंडस्ट्रियल यूनिट अपने वेस्ट को सीधा वाटर रिसोर्सेज में फेंक रहा है, बल्कि अपनी वेस्ट को वहाँ डंप कर रहा है रिवर्स में या और वाटर सोर्सेज में, इससे जो सारी रिवर्स हैं वो उनका पानी खराब हो रहा है। तो इस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट को टैक्सेस लगाने चाहिए या हैवी फाइन्स लगाने चाहिए उन इंडस्ट्रियल पोल्यूटिंग यूनिट्स पर। In the absence of any direct consequences, the individual will tend to do what is best for the person and not what is best for the common good of the public. Cooperatives and NGOs also play a great role in the upliftment of the socio-economic conditions of the rural poor and generating awareness among people regarding environmental issues. कई लोग ये जरूर कहेंगे कि हैवी फाइन्स नहीं लगाने चाहिए या टैक्सेस नहीं लगाने चाहिए, पर आमतौर पर जो लोगों की जो नॉर्मल टेंडेंसी होती है वो वही काम करते हैं जो उनके लिए अपने के लिए अच्छा होता है। वो जनरल पब्लिक के बारे में नहीं सोचते। अगर हम इन बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियल यूनिट की बात करें तो उनके लिए पोल्यूशन को रोकने के लिए जो भी उनको इक्विपमेंट लगाने पड़ेंगे वो महंगे होंगे, वो कभी नहीं लगाएंगे। इसलिए क्या है कि उनके लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, स्ट्रिक्ट एक्शन गवर्नमेंट को लेना ही पड़ेगा। जो कोऑपरेटिव्स हैं और जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस क्षेत्र में, यानी कि जो हम जिस डेवलपमेंट को हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उसमें ये
कोऑपरेटिव्स और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एक अच्छा रोल अदा कर सकती हैं। वे लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकती हैं कि एनवायरनमेंट को कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं और इनको कैसे टैकल किया जाना चाहिए। If you like our video, please share and subscribe our channel. Thank you. थैंक यू।